غیر قانونی تعمیرات اور کرپشن کا الزام محکمہ بلدیات نے بااثر آفیسرز کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹاؤن پلاننگ آفیسر سمیرہ چوہان اور ارم الطاف کے خلاف انکوائری ٹھپ کر دی گئی۔ بااثر شخصیات کی عاشر بعد کے حامل بلڈنگ انسپیکٹرز کو سزا دینے کی بجائے تبادلہ کر دیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، وزیر بلدیات عامر میر کے احکامات کے باوجود محکمہ بلدیات نے بااثر 2 پلاننگ افسران اور بلڈنگ انسپیکٹرز کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ شیر بعد حاصل تھی ان افسران کو، جس میں شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلے کے حوالے سے ان پر الزام عائد کیا گیا، اور الزام جو ہے وہ بعد میں انکوائری کے بعد ثابت ہوا، اور شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا ابھی بھی سلسلہ نہیں تھم سکا۔ ٹاؤن پلاننگ آفیسر سمیرہ چوہان اور ارم الطاف کے خلاف انکوائری ٹھپ کر دی گئی ہے، جبکہ بااثر شخصیات کے شیر بعد کے حامل بلڈنگ انسپیکٹرز کو سزا دینے کی بجائے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے لاہور کے بلڈنگ انسپیکٹرز کے تقرر تبادل کر کے جو ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کی ہے، جس میں اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس والے سے 14 گریڈ کے بلڈنگ انسپیکٹر پر غیر قانونی تعمیرات اور کرپشن کے چارجز ثابت ہوئے۔ طارق سعید کو بلڈنگ انسپیکٹر میونسپل کمیٹی ماناوالا تعینات کر دیا گیا، جبکہ نعمان اشرف کو بلڈنگ انسپیکٹر نیشنل زون میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ محمد علی شاہد واگا زون سے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سے ہٹا کر بلڈنگ انسپیکٹر فیروز والا تعینات کر دیا گیا۔ عصمت اللہ بلڈنگ انسپیکٹر کو نیشنل زون سے ہٹا کر بلڈنگ انسپیکٹر مصطفیٰ آباد تعینات کر دیا گیا۔ احسن رضا کو شالیمار سے ہٹا کر بلڈنگ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج، اور ملازمین کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے، جبکہ ملازمین کا کہنا ہے کہ پہلے احتجاج میں کمیٹی بنائی گئی تھی مگر واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ تفصیلات زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں پر ملازمین کی جانب سے کنٹرول ایگزامینیشن کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں اسی بلڈنگ کے اندر موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں جو پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین ہیں وہ موجود ہیں، جب ان کے سربراہ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اندر کنٹرول ایگزامینیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ کیا ان کے مطالبات ہیں، کیا وجہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ ملازمین سے ہی مزید بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا سر، کیا وجہ، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، کون سے آپ کے مطالبات ہیں جو نہیں مانے جا رہے ہیں؟ ہمارا 44% کا مسئلہ ہے، 15% کا مسئلہ ہے، 25% کا ہمارے بقایا جات رہتا ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور ہر عید میں ملازمین کو بیسک پے کی مد میں عیدی دی جاتی ہے۔ وہ ہماری انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو اگست گزر گیا اس کی 8 اگست کو آپ کو دے دیا جائے گا، جو ابھی تک کسی ملازمین کو نہیں ملا۔ اور جو اوور ٹائم ایڈمن بلاک کے جو ہمارے ایگزامینیشن کے بھائی ہیں ان کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے ہر 3 ماہ کے بعد، وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے۔ انتظامیہ لارے پہ لارا لگا رہی ہے، آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں جی صبح آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے مذاکرات اندر چل رہے ہیں، ہمارے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں دیا جا رہا انتظامیہ تک۔ جی بالکل، ملازمین کی آپ نے بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل، کچھ روز قبل جو ہے وہ ملازمین کی جانب سے احتجاج ضرور کیا گیا تھا۔ یہ اسی احتجاج کی کڑی ہے، ان کے مطالبات جو اس میں یقین دہانی تو کروا دی گئی تھی، لیکن مطالبات جو ہیں وہ ابھی تک بھی نہیں مانے گئے۔ انتظامیہ جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہی ہے، اور انہی مطالبات کے حق میں جو ہے یہ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے جو عہدیداران ہیں وہ تو اندر کنٹرول ایگزامینیشن کے پاس موجود ہیں اور اپنے مذاکرات کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ آگے رکھ رہے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں ملازمین جو ہیں وہ اس احتجاج میں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ جی، پولیس چھاپے کے دوران بھینسیں اور زیورات ساتھ لے جانے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے کہ سیفٹی گارڈ کے بغیر پولیس کا ہر چھاپا غیر قانونی ہوگا۔ غیر قانونی چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ عدالت نے کارروائی 22 اگست تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ پولیس چھاپے کے دوران بھینسے ساتھ لے جانے اور زیورات ساتھ لے جانے کے الزام سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے وہاڑی کے رہائشی عمران کی درخواست پر سماعت کی، اور عدالتی حکم پر سی پی او گجرانوالہ اور ڈی پی او سیالکوٹ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق پیش ہوئے۔ اس موقع پر ڈی پی او نے عدالت کو بتایا کہ جس شخص نے یہ پٹیشن فائل کی ہے اس شخص کا نام عمران ہے، اور اس کے خلاف 26 مختلف مقدمات درج ہیں، اور اس حوالے سے ملزم کو شناخت پلیٹ پر بھی
बंद किया गया है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पुलिस चादर चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? बगैर सेफ्टी गार्ड्स अपनाए, बगैर कैम लगाए पुलिस कैसे किसी के घर रेड कर सकती है? इस हवाले से आपको कानूनी तौर पर जवाब देना होगा। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा कि मैं हुक्म जारी कर रहा हूं कि बगैर सेफ्टी गार्ड अपनाए पुलिस के कहीं भी अगर छापा मारेगी तो वो गैर कानूनी तस्वुर होगा और ऐसे इकदाम करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि महकमा पुलिस में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन फर्ज शनास ऑफिसर और एहलकार भी मौजूद हैं जिनकी वजह से शहर में अमन व अमान बरकरार रखा जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा कि इस हवाले से कानून साजी की जरूरत होगी, जिस पर जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा कि आप इससे मुतल्लिक तजावीज़ बनाकर काबीना को भिजवाएं और इस पर कानून साजी करवाएं। अदालत इसके ऊपर एक तहरीरी हुक्म भी जारी करेगी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने इस मामले पर मजीद कार्रवाई 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आपका बहुत शुक्रिया। एलडीए का पहली बार प्रीमियर सर्विस शुरू करने का फैसला है। प्रीमियर सर्विस के जरिए डाक दस्तावेजात घर पर मौसूल होंगे। प्रीमियर सर्विस के साथ एलडीए की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई जाएगी। सर्विस चार्जेस की मंजूरी एलडीए गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। एलडीए में आने वाले दरख्वास्त कुनिंदगान के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए और घर की दहलीज पर उनकी दस्तावेजात को पहुंचाने के लिए एलडीए की 48 साल तारीख में पहली बार प्रीमियर सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। और ये सर्विस ये है कि कोई भी जो दरख्वास्त कुनिंदगान है वो पैसे अदा करके दस्तावेजात अपने घर पर वसूल कर सकेंगे। प्रीमियर सर्विस के जरिए बजरिया डाक एलडीए से मुतलका दस्तावेजात मुतलका लोगों के घरों पर पहुंचाई जाएंगी। इस प्रीमियर सर्विस के साथ साथ एलडीए की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई जाएगी। ताहम प्रीमियर सर्विस के लिए सर्विस चार्जेस की मंजूरी एलडीए गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी और इसी तनाजुर में डीजी एलडीए के अहकामात पर एलडीए के हेडक्वार्टर्स विंग की जानिब से वर्किंग पेपर की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर जो फिजिबिलिटी तैयार की गई है उसके मुताबिक एलडीए मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज के साथ दस्तावेजात की तरसील के लिए मुआहदा करेगा, जिसमें नक्शा मंजूरी, एनओसी, मलकीची दस्तावेजात और एतराज़ात भी बजरिया डाक भेजे जाएंगे। ताहम एलडीए गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नया सिस्टम नाफजुल अमल कर दिया जाएगा। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल आज जुमा के खुतबात में अक़लियतों के हकूक़, कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। मज़ीद लिखा कि ऐसे वाक़यात को मज़हब का रंग नहीं देना चाहिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, जो सानिया जो जरम वाला हुआ है उसके तनासुब में निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी ने ये ट्वीट किया और बताया है कि पंजाब भर में आज के जुमा के खुतबात में अक़लियतों के हकूक़, कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली जाएगी। और उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में आइए इस बात पर जोर दें कि ऐसे वाक़यात को मजहब का रंग नहीं देना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। हमारी कौम के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करने में उनके सब्र और ताउन के लिए मस्ती उलमा कराम के वो मशहूर है और तमाम मज़ाहब के मसले फिक्र के उलमा ने जो है वो इसमें एक मिसाली किरदार अदा किया है कि इस वाक़या को जो है उस बुनियाद बनाकर अमन को दरहम बरहम ना किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। इंतजामिया चीनी की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम है। चीनी की कीमत 160 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट ना होने की वजह से मनमानी कीमत पर फिरोख्त जारी है और आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, वैसे तो अब कुछ भी सस्ता नहीं है, लेकिन चीनी की महंगाई गुज़श्ता चंद माह से आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है और हुकूमत और इंतज़ामिया इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत की जानब से जो रेट मुकर्रर किया गया था 98 रुपये 82 पैसे, उस पर बाज़ अदालती मामलात की वजह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा और इस वक्त मार्केट में चीनी मनमानी कीमत पर बेची जा रही है। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हुई है, जिसको जवाज़ बनाकर शुगर मिलर्स की जानब से गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल चीनी की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और तकरीबन एक साल में तकरीबन ये 60 रुपये फ़ी किलो तक चीनी महंगी हुई
देखी जा रही है, जो कि 100 रुपये से बढ़ते हुए 160 रुपये फ़ी किलो इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त सारफ हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। महंगाई बहुत है, चीनी 155 160 रुपये बेच रही दुकाना तो महंगाई हर चीज़ में रेट ज़्यादा ने की करिए, मजबूरी है, लैने पैंदे ने, खाने तो है ने, तो गवर्नमेंट चाहिए इहदे बारे सोचना, गरीब आदमी का कोई ख्याल कर। जी बिल्कुल, सार्फिन से तो जब भी बात होती है उनका सिर्फ यही कहना है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और जो भी तरीका है उसके कम से कम बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, ताकि लोगों को कम से कम चीनी, आटा, घी जैसी चीज़ें जो हैं वो सस्ती और बासानी दस्तयाब हो सकें। लेकिन इसके बरक्स सूरत मार्केट में नज़र आती है और अब चीनी की कीमत में अभी मज़ीद इजाफे का खदशा भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिब। महंगाई से गरीब आवाम परेशान। टमाटर 140, लहसुन 560, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो, केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा दो में 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 608 रुपये हो गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल अशिया ज़रूरिया या अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इसी तरह फलों के हवाले से बात की जाए तो फलों की कीमतें भी एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। पोल्ट्री मसनूआत की जो सरकारी नकनामे उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया। अंडों की कीमत भी 1 रुपये बढ़ाकर 293 रुपये दर्जन कर दी गई है, जबकि ब्रायलर की कीमत 2 रुपये बढ़ाकर 602 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। आटे के हवाले से बात की जाए तो 10 किलो आटे का ताला मार्केट में 1450 से 1500 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो चक्की आटा है वो 170 से 175 तक फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जिन्होंने ब्रायलर की ख़रीदारी की है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताएगा कितना ब्रायलर ले लिया और महंगाई की क्या सूरत है? ये सर 300 रुपये का आधा किलो गोश्त है, आधा किलो से भी कम है सर। और 25-30 हज़ार जो कमाने वाले लोग हैं तो वो बिजली के बिल कैसे दें, और बच्चों की जो स्टडी है उस पर कैसे एक्सपेंसेस जो कैसे अपने पूरे करें। सब्जियों और फलों के भी रेट बहुत ज़्यादा है सर जी, बहुत ज़्यादा रेट है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि 300 रुपये का आधा किलो भी गोश्त नहीं आया ब्रायलर, जबकि दिगर लवाजमात और दिगर अज्जा जो हैं वो भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। सब्जियाँ हो, फल हो, कोई भी जो बुनियादी ज़रूरत की शय वो अब आम आदमी की पहुँच में नहीं रही है। महंगाई की वजह से जो है वो लोगों का गुजारा जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का शालीमार बागवानपुरा के इलाकों का दौरा है। दौरान चेकिंग एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है और मौका पर तल्फ कर दिया है। डीसी की घर के मालिक को वार्निंग, डेंगू टीमों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और राफिया हैदर ने डोर टू डोर डेंगू सर्विलेंस मार्किंग का जायज़ा लिया है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि डेंगू के ख़ात्मे के लिए डीसी लाहौर मुतहरिक हैं। बागबानपुरा के इलाकों का दौरा किया गया है और इलाका मकीनों से डीसी की जानिब से बातचीत भी की गई है और सफाई के इंतज़ामात बारे अहकामात भी जारी किए गए हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर की डेंगू के ख़ात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीसी लाहौर ने आवाम से बातचीत भी की है और उन्हें सफाई के बारे में अहकामात भी जारी किए हैं। डीसी लाहौर डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का शालीमार बागबानपुरा के इलाकों का दौरा है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल डेंगू मुहिम में तेजी और राफिया हैदर ने सफाई विजिट किए हैं। डीसी लाहौर ने शालीमार और बागवानपुरा में घरों में जाकर लार्वा चेक किया है, जबकि डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि दौरान चेकिंग एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मौका पर तलब कर दिया गया। डीसी लाहौर ने घर के मालिक को वार्निंग नोटिस भी जारी किए, जबकि डेंगू टीमों से शोकस नोटिस जारी कर दिए गए। तमाम इलाका दोबारा चेक करने, मुतासरा घर और घर के इर्द गिर्द स्प्रे करवाने की भी हदायत कर दी है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। DHQ और THQ हॉस्पिटल्स में खसूसी डेंगू सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डेंगू की रोकथाम के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, टीचिंग अस्पतालों के बाद अब जो THQ अस्पताल है यहाँ पर भी जो डेंगू काउंटर्स हैं ये कायम किए जाएंगे। इस हवाले से आज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम सदर का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत अली जान और निगरान सफाई मुदीर से डॉक्टर जमान नासिर भी मौजूद थे। डॉक्टर जमान नासिर की जानिब से कहा जा रहा है कि डेंगू SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए साइंसी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। फॉगिंग से एलर्जी की बीमारियां फैलती हैं और बार बार स्प्रे के नतीजे में मच्छरों में इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, जबकि डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के
कैंटीन सेंटर्स पर आने वाले मरीज अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर चेकअप के लिए मुफ्त पर्ची बनवा सकते हैं। और ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि 1500 नए स्कूलों का मंसूबा शुरू न हुआ। 1 साल बाद भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मंसूबा शुरू न कर सका। मंसूबे के तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1500 नए स्कूल कायम किए जाने थे। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ, मंसूबे में ताख़ीरी की क्या वजूहात? जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है स्कूल कायम करता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फी बच्चे के हिसाब से फंड दिए जाते हैं और स्कूल इंतजामिया जो है वो मुफ्त तालीम फराहम करती है। और इसी तर्ज पर जो है 1500 नए स्कूल कायम करने का ऐलान किया गया था और ये मंसूबा जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाना था। 1 साल कबल इस मंसूबे का ऐलान किया गया था, जिसके तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1500 स्कूल कायम किए जाने थे और 5 सालों में 5 लाख बच्चे इन स्कूलों में आने थे। लेकिन 1 साल बाद भी ये मंसूबा अभी तक कागजों और फाइलों तक ही महदूद है और इस हवाले से तर्जुमान का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब के साथ जो है वो मामला चल रहे हैं। LWMC की जानिब से माहौल दोस्त इक़दामात का सिलसिला जारी। आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और मुलाहिका इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज़। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि सगियाँ, भाटी और शादमान के आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर ग्रीन TCP में बदल दिया गया है। फलदार, खुशबूदार, सायादार और फूलदार 1000 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। टाउनशिप में ताजरों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन का कहना है कि निगरान हुकूमत ने साबिक हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई से एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। राहिल अली से मजीद जानते हैं। जी राहिल, अपडेट कीजिए, मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात थे? जी, पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफे के खिलाफ टाउनशिप जो ताजिर थे उन्होंने जो है वो एहतजाज किया। ताजिरों ने बैनर उठा रखे थे जिसमें जो है वो मुख्तलिफ नारे जो है वो दर्ज थे। ताजिरों का कहना यह था कि माजी की हुकूमत ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई की थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने आते के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा करके अवाम के साथ इंतहाई ज्यादती की। उनका मुतालबा यह था कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जाए फौरी तौर पर वापस लिया जाए और महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत ने जो है ये अवाम की तरक्की के लिए नारे लगाए थे, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। निगरान हुकूमत भी जो है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया। बहुत शुक्रिया राहिल। 24 घंटे में रजिस्ट्री साइलिन को वापस नहीं हुई तो महकमाना कार्रवाई होगी। DC लाहौर राफे हैदर का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा। रजिस्ट्री ब्रांच में अमले की मौजूदगी, साइलिन से बराह रास्त फीडबैक भी लिया गया है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि साइलिन से बराह रास्त फीडबैक लिया जा रहा है। रजिस्ट्री ब्रांच में अमले की कारकर्दगी के हवाले से भी पूछा गया है। DC लाहौर राफे हैदर का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का दौरा।